Hello everyone, I am Dr. Amrit, academic head of Akash Southex branch, and you are listening me on Radio Mirchi. Thank you so much, ma'am, for sparing out time and joining us. जितने भी बच्चे कुछ बनना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में, खास तौर से साइंस में भी कुछ करना चाहते हैं, मेडिकल में एक मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड भी आपसे बात कर रहा था कि एक इमेज बन गई है यार, आकाश इंस्टीट्यूट में अगर आप एंटर कर जाते हैं तो आप कहीं तो कुछ ना कुछ कर ही जाते हैं मेडिकल फील्ड में. मेरा अपना सिलेक्शन बड़ा एक स्टोरी रही थी जो मैं मैम से भी डिस्कस कर रहा था. बट हाउ डू यू फील टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग लेगेसी? Like I am in this industry like from past 2 decades, like 20 years. So, and the type of ecosystem they have, that is really amazing. And I am here from past 20 years, so it means they have a stable ecosystem. So we call it as stable academic ecosystem. तो एक मैं देखता हूँ मैम की लेगेसी बन गई है अच्छे जेई एंड नीट रिजल्ट्स के बारे में, एंड ईयर आफ्टर ईयर ये रिपीट हो रहा है. ऐसा नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ फ्लूक कि अभी हुआ तब हुआ. ये कोई कल का आया हुआ इंस्टीट्यूट नहीं है, एज वी से इन लोकल लैंग्वेज. बट इतनी बड़ी लेगेसी जब आप कैरी कर रहे होते हैं, इसका सीक्रेट क्या है, रीजन क्या है इसका? Ecosystem जैसे हम जनरली जानते हैं what it is. It is like different components are there. They are interacting with each other and performing a function to give productivity. Same way we are working here and we call it as academic ecosystem, right? So what are the components? So first main component, which is the backbone of this industry, that is teachers, like NEET experts, mentors, like these mentors, they really work very hard. They are veteran, many of them, they are like old veteran teachers. And whosoever is coming new into this like industry, they are like well trained, and that training is very rigorous. Whereas you have to work really hard for like clearing this training part. Okay, so one main backbone is teachers. And second is testing pattern, the curriculum that is well refined. Like आपको पता ही होगा जो नीट का टेस्ट होगा वो कितने नंबर का होता है? मेरे को नहीं आइडिया. 720 का होता है. ठीक है, 720 का होता है. पर जैसे ही एज अ स्टूडेंट आप एंटर करते हो, इट इज नॉट लाइक दैट वी आर गोइंग टू पुट अ टेस्ट ऑफ 720 मार्क्स. ऐसा नहीं है कि आते ही जो 720 मार्क्स का टेस्ट दे दिया. नो, देयर इज अ रिफाइंड, देयर इज वेल डिफाइंड testing pattern. First, we are going to give them a small test, like 240 marks. Then slowly and slowly, we are going to stretch them. We are going to take them to that level. So that testing pattern is really very amazing. Very amazing. Then teachers ने पढ़ा दिया, testing हो गई, and then what else is required? Another component of the ecosystem is that testing analysis. Test का analysis. So for test analysis we have AI. Yeah, we use that. मतलब आप एक स्टूडेंट है, मैं एक स्टूडेंट हूँ. मैंने फ्लावर्स के ज्यादा क्वेश्चन गलत करे जी, आपने ज्यादा गलत करे, मान लेते हैं फ्रॉग के, लेट्स से, या कॉकरोच के, तो आपको एक वर्कशीट आएगी फॉर फ्रॉग. I will get a worksheet on my app for flowers. So AI integrated है, right? And along with that testing analysis जब हम करते हैं तो we assign mentors, students जिनका मतलब performance जो है और enhance करना है, तो mentors they interact with them. We conduct PTMs to enhance their score, to guide them. So we have basically 3 components here in the ecosystem. आई थिंक ऐसा कुछ आ गया, टी आ गया, टीचर आ गए, टेस्टिंग आ गई, एंड देन टाइमली एनालिसिस आ गया. सो 3 of them they are going to interact and make a productive ecosystem, and we are going to call this ecosystem as academic ecosystem. यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो पहले एक रिगरस ट्रेनिंग के थ्रू जाते हैं, then only they can enter the system. Without that it cannot happen. तो यहाँ का जो सिस्टम है दैट इज डिफरेंट. तो उसके थ्रू वो जाएंगे एंड देन दे कैन एंटर. वेरी नाइस. और जब हम बात करते हैं कि एक आई थिंक लॉन्ग बैक जब व्हेन आई वाज इन स्कूल एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी आता था जहाँ पर बच्चा जो है वो
आई थिंक स्कूल वाला पोर्शन भी कोचिंग में कवर हो जाता था एंड बच्चे का टाइम जो है वो उससे बचता था, इफ यू रिकॉल व्हाट आई एम सेइंग, है ना? हाँ, बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं. सो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इफेक्टिव बच्चे के लिए क्या रहता है? एक सेल्फ स्टडी का जो पैटर्न रहता है बच्चे का, उसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है जब भी वो किसी कोचिंग में है, आकाश में है, कैसे प्लान करता है? सर एक्चुअली यू थिंक मतलब कि 3 चीजें हैं जो यहाँ पे वर्क करती हैं. हाँ. एक स्टूडेंट है, एक आकाश है जी, मतलब टीचर, हाँ. और देन वन पेरेंट. हाँ. इन तीनों का इंटरेक्शन जब होता है देन बेस्ट रिजल्ट आता है. बट इसमें वेटेज किसकी जाता है? आकाश इटसेल्फ अ ब्रांड. टीचिंग में मतलब कोई डाउट ही नहीं. मतलब जो टीचर्स है दे आर अमेजिंग, दे आर वंडरफुल. कैन यू आस्क यू वन क्वेश्चन? प्लीज फील फ्री. जैसे एक बॉटनी है और एक ज़ूलॉजी सब्जेक्ट है, आपको ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है? और या ऐसे कह सकते कौन सा बोरिंग लगता है? बॉटनी बोरिंग है, जग जाहिर है कि बॉटनी बोरिंग है. मतलब उसमें कोई ओपिनियन भी नहीं है ऐसे मिक्स जो मेरी तो. जी. ज़ूलॉजी इसलिए आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा क्योंकि आप अपने साथ रिलेट कर पाते हो एनिमल्स. दैट्स इट, दैट एग्जैक्टली. बट डू यू नो मतलब कि यहाँ पर जब बच्चे आकाश के अंदर आते हैं मतलब they are going to enjoy botany and zoology equally. Wow. Why? Because we are going to start from the base, from the root. We are going to start from the root. We are going to build the concept. We are going to cite the examples, real life examples, so they can relate the botany with the reality, and they are going to enjoy it like anything. So, मतलब इन जनरल मैं देखता हूँ कि AI पैटर्न्स का भी आपने बताया, आप जो बोरिंग टॉपिक्स को है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव तरीके से समझा रहे हैं बच्चों तक. तो आई एम श्योर कि बच्चे तो सेटिस्फाई हो जाते होंगे वंस दे एंटर आकाश इंस्टीट्यूट. बट पेरेंट्स की एक अलग एक्सपेक्टेशन रहती है. पेरेंट्स अलग, हमारा बच्चा अब घर से जा रहा है, अब वो आकाश बोल के जा रहा है और आकाश में है, तो वो भी बैक ऑफ द माइंड तो निश्चिंत हो जाते हैं, चलो सही जगह जा रहा है. बट ऐसी कौन सी चीजें हैं आकाश इंस्टीट्यूट में जो पेरेंट्स का ही स्ट्रेस पूरा फ्री कर देते हैं? मतलब आई एम श्योर कि एक पैटर्न होता होगा पेरेंटल कंसर्न्स का जो ऑफन आप डील करते होंगे. पेरेंट्स के क्या सवाल रहते हैं अमूमन? देखो, पेरेंट्स का जो एक मेन चीज होती है वो होती है एकेडमिक्स, कि उनके नंबर अच्छे आने चाहिए. बट एकेडमिक्स इटसेल्फ वी से दैट कि मैं जैसे पहले भी बात कर चुकी हूँ, एकेडमिकली ये इकोसिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है. बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूँ तो मैंने विद इन पास्ट फ्यू इयर्स मैंने देखा है कि और भी चीजें हैं बच्चे जो डिमांड करते हैं. मोटिवेशन, काउंसलिंग, इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, राइट? सो अगर इन सारी चीजों को मिक्स कर देते हैं अगर हम, तो एक होलिस्टिक इकोसिस्टम है जो रिक्वायर्ड है जी. एंड यस, आकाश इज लाइक अ होलिस्टिक इकोसिस्टम. मतलब मेंटरशिप हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को. वी कंडक्ट PTMs, राइट? एंड PTM से, मेंटरशिप से बच्चे रिलेट करते हैं टीचर्स के साथ, उनके साथ मिलते हैं, प्रॉब्लम्स बताते हैं. एकेडमिक तो है ही, एकेडमिक प्रॉब्लम्स बताते हैं. देन वी गिव देम इमोशनल सपोर्ट, वी मेक देम मेंटली स्ट्रॉन्ग, राइट? So we are basically working on holistic approach in Akash. ये तो हो गई नीट वालों की, जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्लास 12 वालों की हमने बात करी. 10th क्लास के बच्चों का कैसा रहता है इंटरेस्ट फैक्टर जो है? मतलब हु आर स्टैंडिंग एट अ क्रूशियल क्रॉसरोड अभी, वो अपना कंफ्यूजन कैसे दूर करें कि यार मेडिसिन में करियर बनाना है, क्या करना है? मतलब उनकी क्या साइकी रहती है अभी? मुझे ना एक एग्जांपल ऐसे यहाँ पे साइट करने का मन कर रहा है कि ना मेरे नेबर में ही ना एक स्टूडेंट है, तो वो मतलब उसने मुझे अप्रोच करा घर पे आके कि जैसे उनके फादर ने बोला कि ना ये मेडिसिन में जाना चाहता है. तो जैसे एज अ मेंटोर, एकेडमिशियन, मेरे मन में आया कि बेटा कि ऐसे क्या चीज है जो आपको कहती है कि आप मेडिसिन में जाना चाहते हो. मतलब हम जैसे थोड़ा नॉक करते हैं कि कहाँ से किक मिला है ऐसे. तो मैंने उससे पूछा, कहते मैम हाफ ईयरली के एग्जाम्स थे तो मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया बिकॉज थोड़ा गैप ज्यादा था, मेरे को फूड पॉइजनिंग हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज्ड हुआ. तो वहां पे जाकर मैंने देखा नर्सेस ने मेरी इतनी केयर करी, और वो मैंने जो डॉक्टर्स का देखा ऑरा, वो उसके लैंग्वेज में ना, उस जनरेशन की लैंग्वेज में मैं बोलूंगी स्वैग बोला उसने मुझे. जो मैंने वो स्वैग देखा डॉक्टर का, मैंने उस टाइम पे मुझे लगा नहीं,
मेरा थोड़ा सा मेडिसिन की तरफ इंक्लाइनेशन है मेडिसिन की तरफ, ठीक है। तो वो मेरे पास आया तो मुझे थोड़ा सा लगा पैशनेट तो है, ही इज पैशनेट अबाउट इट। देखो मैं कहा अगर आपको इस फील्ड के अंदर जाना है तो आई विल से यू नीड टू स्टार्ट अर्ली। तो lots of question marks were there on the face of the student as well as the parent, I can see. So फिर मैंने पूछा चल बेटा आप कौन सी कोई गेम खेलते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह कोई है आपकी? तो ही सेड कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कितने सालों से खेल रहे हो आप? कहते 4 साल से खेल रहे हो। मैंने आप कैसा खेलते हो? कहते अच्छा खेलता हूँ। तो मैंने कहा क्यों खेल रहे हो अच्छा? बिकॉज इट्स ऑल फैक्टर ऑफ टाइम एंड एफर्ट। You need to give time to everything, right? तो जैसे अगर आप मेडिसिन की तरफ प्रभावित हो तो आपको टाइम देना पड़ेगा, एंड फॉर दैट यू नीड टू स्टार्ट अर्ली, राइट? सो जैसे आप स्कूल के अंदर बात करें या आकाश के अंदर बात करें, कोचिंग के अंदर, तो आपको पढ़नी तो वही किताबें एनसीईआरटी, यू नो दैट, ठीक है। पर उसके अंदर ग्रिप कैसे आएगी? ग्रिप तभी आएगी जब आप उसको टाइम देंगे। टाइम देने से इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एनसीईआरटी इज गोइंग टू बी देयर। और वही टाइम देते हुए जब यू हैव सम फैबुलस मेंटर्स जैसे आकाश इंस्टीट्यूट में होते हैं, तो वो कहते हैं ना नो रोड इज लॉन्ग विद अ गुड कंपनी, शायद रास्ता वैसा ही कट जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। So, कुछ आप, मैं चाहता हूँ आप हमारे लिसनर्स को पास्ट रिजल्ट्स के बारे में भी कुछ बताएं कि हाउ डज दैट वर्क। अभी चिल्ड्रन आर स्टार्टिंग अर्ली, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं? फिर रिजल्ट्स आपको पता होगा, जैसे लास्ट ईयर का पेपर जो था वो काफी डिफिकल्ट था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। पैंडेमिक की वजह से पहले थोड़ा सा लेवल लो हो गया था, बट दिस टाइम डिफिकल्टी लेवल वाज क्वाइट हाई। तो मैं ये कहूंगी जैसे ये तो जैसे रेट्रो लुक होती है ना, तो ये रेट्रो पेपर आ गया, क्योंकि पहले पुराने साल में यही पेपर था जी, ठीक है। तो अगर ये रेट्रो पेपर आया है तो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हमने आज थोड़ी बनाया है। हमारा जो स्टडी मटेरियल है, हमारे जो पैकेजेस हैं, आप ये सोचो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो तो रेट्रो से लेके फिर एवोल्यूशन जो हुआ, स्लो डाउन हुआ, इजियर हुआ, उससे लेके हर तरह का क्वेश्चन है उसके अंदर, राइट? एंड वी टेल आवर स्टूडेंट्स, वी गाइड आवर स्टूडेंट्स to revise those questions, revise those packages twice, thrice, n number of times before the NEET exam. ठीक है? तो इस डिफिकल्ट पेपर आने की वजह से भी, इवन डिफिकल्ट पेपर आया है फिर भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, they have performed amazingly. जी. Can you guess how many top ranks we have secured out of 10? I cannot guess क्योंकि मेरी 50%. Wow, that is incredible. That is incredible. That is amazing. 50%. Second, third, fifth, ninth, 10th year was from Akash Institute. Wow. So I'm sure अच्छा रिजल्ट कहाँ मिल रहा है, अगर इसका कोई ठिकाना हो तो आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सबसे ऊपर लिखा जाएगा। बिफोर आई लेट यू गो मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों को? हुआ प्रेपिंग आप अभी स्ट्रेस फेस कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा टेंशन भी होती है, इतने बड़े एग्जामिनेशन में वो बैठ रहे हैं, क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे उन बच्चों को? देखो आप पिछली मतलब आपने बहुत एक अच्छी चीज जो पूछी है कि इतना डिफिकल्ट लेवल था, फिर मैंने बताया कि इतना अच्छा स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करा, तो इट मींस जो हम एई की बात कर रहे हैं, एकेडमिक इकोसिस्टम जो हमारा है, दैट इज प्रोडक्टिव। सो मैसेज मेरा ये है, स्टूडेंट्स स्टार्ट अर्ली, बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।